Today we are going to discuss relations. So let us discuss what is relation. तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है रिलेशन, जैसे ह्यूमन रिलेशन भी एक से ज्यादा के बीच में होता है, तो सेट्स में भी रिलेशन के लिए वी नीड टू सेट्स. सो लेट A and B be two non-empty sets then a relation R between a relation R from, यहाँ between नहीं होता, relation R from set A to B is a subset of A cross B. हमने पहले A cross B के सबसेट्स भी निकाले थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन में. एंड एनी सबसेट ऑफ A cross B है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो A cross B के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबको हम एक रिलेशन कहेंगे. अब जरूरी नहीं है कि उसमें जो पेयर में रिलेशन है वो इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा जाए, बट ईच सबसेट ऑफ A cross B इज ए relation from A to B. For example, let A is 1, 2, 3, 4, B is 3, 4, 5, 6. Now A has 4 elements, B has 4 elements, A cross B will have 16 elements. तो there will be 2 की पावर 16 सबसेट्स ऑफ A cross B, और हर सबसेट को एक रिलेशन कहेंगे. तो लेट अस डिफाइन ए रिलेशन R एज X, Y. रिलेशन भी A cross B का सबसेट है, A cross B में ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे. A cross B के कुछ पेयर इसमें होंगे, कुछ नहीं भी हो सकते. तो let R is set of ordered pair XY such that X plus Y is 4 and X belongs to A, Y belongs to B. Let us write what is R. X A में लो, Y B में लो और सम 4 हो, तो 1, 3 का सम 4 है. और कुछ आ रहा है 2, 3, 4, 5 किसी से नहीं बनेगा, 3 का भी सम 4 नहीं बनेगा, यहाँ 4 का भी सम, क्योंकि मुझे X A से लेना है. ठीक है, अगर मैं X यहां से लेता और Y यहां से लेता तो 3, 1 का सम 4 होता. तो दिस इज सबसेट ऑफ A cross B, क्योंकि A cross B में तो सारे पेयर आएंगे 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 like that. Let us take another, say R1 XY such that X plus Y is even. X belongs to A and Y belongs to B. So here R1 in roster form will be 1 का सम even किसके साथ है, 3 और 5 के साथ, तो 1, 3, 1, 5. अब 2 A में लेंगे, सम even होगा इसका even नंबर के साथ, 2, 4, 2, 6. देन 3 का सम 3 के साथ और 5 के साथ even होगा, 3, 3, 5. देन 4 का सम 4 के साथ और 6 के साथ.
Now again you will observe this is subset of A cross B. So as R and R1, there will be many more. R subsets of A cross B. These two are subsets of A cross B. Therefore, R and R1 are relations from A to B. जो भी A क्रॉस B का सबसेट है उसको रिलेशन फ्रॉम A टू B कहेंगे. अगर B क्रॉस A का सबसेट है तो रिलेशन फ्रॉम B टू A कहेंगे. डोमेन, if R is a relation from A to B, then set of all first entries of ordered pairs in R. R में जितने भी ordered pair हैं उनसे first entry collect करें, एक set बनाएं. If R is a relation from A to B, then set of all first entries of ordered pairs in R is known as domain. Now range के लिए set of second entries. So if R is a relation from A to B, then set of all second entries of ordered pairs in R is known as range. तो अगर R रिलेशन है A to B में, A to B पे, तो जो सेकंड एंट्रीज होंगी R में ऑर्डर्ड पेयर में, उसको जो सेट बनेगा उससे विल कॉल दैट एज ए रेंज. फिर एक होता है कोडोमेन, इसे निकालना नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट मालूम होती है हमें. इफ R इज रिलेशन फ्रॉम A to B, if R is a relation from A to B, then the whole set B is known as codomain. रिमेंबर, नोट करके लिखें, डोमेन हमेशा A का सबसेट होगा अगर रिलेशन फ्रॉम A टू B है. रेंज जो है वो B का सबसेट होगा if relation is from A to B. Now we'll be doing examples based on this, and then we'll write few more results. Let R be a relation defined from set A equal to 1 to 3 up to 10 to B equal to 1 to up to 6 by R is equal to X comma Y such that X belongs to A, Y belongs to B. If it is written it is a relation from A to B, तो कई बार यहाँ पे नहीं भी दिया होता तो X फर्स्ट सेट में होगा, Y सेकंड सेट में होगा. अगर B to A है तो X B में होगा, Y A में होगा. Such that X plus Y is 3.
write R in roster form, find domain and range. So R is xy such that x belongs to A, y belongs to B, and x plus y is 3. तो A में से पहला एलिमेंट लीजिए, B में से सेकंड एलिमेंट, सम 3 बनाना है, तो 1 2, then 2 from A, 1 from B. There is no other pair whose sum is 3. So domain is set of first entries. Domain is set of first entries of the ordered pairs in R. तो first entry 1 है और 2 है, और ये कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, सेट का सिंबल होता है। रेंज इज सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, 2, 1 लिखो या 1, 2 लिखो। If codomain is asked, then we'll write codomain is this whole set. Now we'll do number of relations. 1 mark question can be asked here. Number of relations. Let A and, ये तभी होगा जब दोनों फाइनाइट सेट्स हैं। Let A and B be two finite sets having M and N elements respectively. तो पहले में M एलिमेंट्स है, दूसरे में N एलिमेंट्स है। Then number of elements, N stands for number. Number of elements in A cross B is equal to Mn, and number of, अब A क्रॉस B एक सेट है जिसमें Mn एलिमेंट्स है, therefore number of elements, number of subsets of A क्रॉस B, तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं, यहाँ 2 की पावर mn सबसेट्स होंगे, क्योंकि A क्रॉस B में mn एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स हुए 2 की पावर mn, और हर सबसेट एक रिलेशन है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B is 2 raised to power mn. More specific, 2 raised to power number of elements in A into number of elements in B. तो we can have 1 mark a question. इसके बाद relation in A. Sometime it is written relation on A. A relation R from A to A. जब दोनों सेट A होंगे, from A to A, a relation R from A to A is said to be the relation in A. That is a relation in A is सबसेट ऑफ, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B का, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, लेकिन यह A और B दोनों सेम है, तो जब A क्रॉस A का सबसेट होगा तो उसको रिलेशन फ्रॉम A टू A ना कह के विल से रिलेशन इन A, and we may call relation on A also. Some books have written in A, some have written on A.
तो रिलेशन इन ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए n ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरा भी a हो जाएगा, यहाँ भी n और n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n, वेयर व्हाट इज n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो अगर a फाइनाइट सेट है n एलिमेंट्स का, तो a क्रॉस a में n इंटू n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, तो 2 की पावर n स्क्वायर सबसेट्स होंगे, ईच सबसेट इज ए रिलेशन, therefore number of relation in a is 2 की पावर n स्क्वायर। And this will help us in understanding the function. Let R be a relation from A 1 2 3 4 to B equal to 1 2 3 4 5, defined as R is equal to A comma B such that first element A में second element is in B and A plus B is less than 4. Depict R by रे डायग्राम। क्योंकि बाकी पार्ट तो हमने किया है, इसमें हम सिर्फ रे डायग्राम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट विल ड्रॉ सेट ए, एक ये एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जहां ए के एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4। फिर यहाँ बी सेट के एलिमेंट लेते हैं, and this is 1 2 3 4 5। अब ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से तब रिलेटेड है जब सम 4 से लेस है। 1 का सम 1 के साथ 4 से लेस है, तो 1 इज रिलेटेड टू 1। 1 का सम 2 से के साथ 4 से कम है, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 से कम लेना है, तो 2 रिलेटेड टू 1, 2 कांट बी रिलेटेड टू 2, 2 कांट बिकॉज सम इज 4। अगर लेस देन इक्वल टू 4 होता तो हम यहाँ तक आ जाते हैं, 2 बाकी से नहीं होगा। 3 का भी 1 के साथ सम 4 हो जाएगा, वी वांट 4 से लेस। तो यहाँ से भी हम R को, हमें पूछा इतना ही है तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए R को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ से और इजी है रोस्टर फॉर्म में लिखना। 1 1 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 1 से रिलेटेड है। सो यू कैन सी दैट डोमेन जो है यहाँ से इजिली आ जाएगी। तो यू कैन सी दैट डोमेन इज 1 2 which is subset of A if relation is from A to B, and range is set of second entry that is also 1 2, this is subset of B. So this way we can find the domain and range from the ray diagram. Sometime ray diagram will be given, you will be asked to write the relation R in roster form or maybe in set builder form. So we are beginning with exercise 2.2, question number 1. A is a set having elements from 1 to 14, 1 to 3 up to 14, and R is a relation from A to A. Instead of writing A to A, it might have been written relation in A. तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए और रिलेशन इन ए की बात है, इसका मतलब ए और बी दोनों सेट सेम है। एंड आर डेफिनेशन इज एक्स वाई
such that 3x minus y is equal to 0, where x comma y belongs to A. Write down R, write its domain, codomain and range. So for that we need to write R in roster form first. तो y 3x है, y is 3x, तो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स सेकेंड एलिमेंट है. तो अगर मैं, अच्छा मुझे A क्रॉस A का सबसेट लिखना है क्योंकि रिलेशन फ्रॉम A टू A है, तो दूसरा सेट भी A है. तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख दूं A अगेन विच इज नॉट रिक्वायर्ड, थोड़ा क्लैरिटी के लिए, तो A क्रॉस A में पेयर बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 14 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 14 लाइक दैट. तो हमें होल ऑफ A क्रॉस A नहीं चाहिए, वो पेयर चाहिए जिसमें सेकेंड एंट्री फर्स्ट का 3 टाइम्स है, y इज 3x. तो पहला एंट्री में x को 1 लूंगा तो y 3 हो जाएगा, 2 लेने से 6 आ जाएगा, 3 से 9 आ जाएगा, 4 से 12 आ जाएगा. इफ आई टेक 5 तो 15 आएगा, बट 15 डज नॉट बिलोंग टू A. तो मेरे x और y दोनों A में है, होने चाहिए. तो x 5 तो A में है, लेकिन जो y आएगा कॉरस्पॉन्डिंग 15 वो A में नहीं होगा. तो वी हैव टू स्टॉप हियर. तो डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज. So you can see domain is 1 2 3 4 and range is 3 6 9 12. So this is done. Is question number 2. Define a relation R on set. अब यहाँ ऑन वर्ड लिखा, ऑन सेट n मीन्स फ्रॉम n टू n. पहला सेट भी n है, A भी n है, B भी n है. तो R is relation on n defined as R is x comma y such that second entry y is 5 more than first entry, x plus 5, where x and y both are natural number, which we can write in short xy belongs to n, where x is a natural number less than 4. I repeat, R is x comma y, where y is x plus 5, xy are natural number and x is a natural number less than 4. तो फर्स्ट एंट्री या तो 1 होगी बिकॉज नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, और लेस देन 4 है तो फर्स्ट एंट्री विल बी 1 2 एंड 3. तो 1 1 फर्स्ट एंट्री होगी तो सेकंड एंट्री 1 प्लस 5 6, 2 पे 7 आ जाएगा, 3 पे आपके पास 8 आ जाएगा. तो R is easily obtained here. Depict this relation using roster form. तो रोस्टर फॉर्म हमने कर दी. राइट डोमेन, डोमेन इज set of first entry which is 1 2 3 here, and range set of second entries 6 7 8. Now we'll do question number 3. Question 3, A is 1 2 3 5, B is 4 6 9. Define a relation R from A to B by xy such that difference between x and y is odd and x is in A, y is in B. So write R in roster form, that is all. R is, difference is odd, 1 4
1619 इवन हो जाएगा, 2426 नहीं आएगा, 29 आएगा, 3436 39 का डिफरेंस इवन हो जाएगा, देन 54 and 56. So this is what is required in this question. So in question number 4, ray diagram is given. We are supposed to write R in set builder form, roster form, domain and range. तो हम पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं, x, y such that x is from P, पहला सेट P है, सेकंड सेट Q है, अब 5 माइनस 3 2 है, 6 माइनस 4 6 4 से रिलेटेड है, 6 माइनस 4 2 है, 7 माइनस 5 2 है, तो x माइनस y is 2 and x and y belong to P and Q respectively. एंड सेकेंड पार्ट इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में तो ये लिखा ही हुआ है एक तरीके से 5,3 6,4 7,2. Then domain and range. Domain is set of first entry, the whole set P is domain, 5 6 7 तीनों ही आ गए. डोमेन फर्स्ट सेट से बिगर नहीं हो सकता, ऐसे रेंज सेकंड सेट का सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा, उससे बिगर नहीं हो सकता. 3 4 range equal to 3 4 5. Here in fifth question it is given R A is equal to 1 2 3 4 5 6. R is relation on A means second set is also A. कई बार ध्यान रखना 5 भी लिखा जाता है. A is 1 2 3 4 6 not 5. A is 1 2 3 4 6. R is AB such that B is exactly divisible का मतलब ही exactly होता है, exactly divisible by A, यानी कि फर्स्ट एंट्री सेकंड को डिवाइड कर रही है और सेकंड डिवाइड हो रही है फर्स्ट से. तो फर्स्ट एंट्री 1 लेंगे तो 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, 1 1 को भी करेगा, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 1 6. You can check B is 1 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1 like that. उसके बाद 2 जो है वो 1 को नहीं डिवाइड करेगा, 2 को करेगा, 4 को करेगा और 6 को करेगा. यहाँ भी B और A में रिलेशन देख लो, B2 is divisible by A2, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2. Then 3 will divide 3 as well as 6. 3 4 को, 2 को, 1 को नहीं डिवाइड करेगा. 3 is divisible by 3, 6 is divisible by 3. 4 सिर्फ 4 को ही करेगा, 6 को नहीं करेगा, और 6 से डिविजिबल होगा यानी कि 6 को ही डिवाइड करेगा. तो दिस इज आर डोमेन. डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, वो सारा ए पूरा आ रहा है. Domain is set of first entry, so domain is 1 2 3 4 6. You can count first entry 1 2 भी आ रही है, एक ही बार लिखना, रिपीट हो रही है तो 3 and 4 and 6. रेंज आल्सो, रेंज में भी 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 6. So this is how we can find domain and range of. Question number 6. Determine the domain and range of the relation R defined by. इसमें A और B दिया नहीं हुआ है, वो यही एक तरीके से A और B दोनों यही सेट हैं, इनडायरेक्टली दे दिया है. R is x, x, 5. R is x,
x plus 5. First entry is x, second entry is x plus 5. Where x is in the set, तो इसमें तो सब कुछ दिया ही हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। तो पहली एंट्री 0 ले लो, तो सेकंड पार्ट जो है पेयर का वो 5 हो जाएगा। फिर 1 लेंगे तो 1 6 2 7 3 8। x बिलोंग्स कर रहा है इसमें, y नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है। तो इसको सेट ए नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते आर इज रिलेशन इन ए। तो एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं, आर इज x कॉमा x प्लस 5, x बिलोंग्स टू दिस सेट। तो therefore r is 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 8 10. This is R. Domain, set of first entries 0 1 2 3 4 5. Range is set of second entries, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, 1 2 नहीं सॉरी, रेंज में second entries 5 6 7 8 9 10. So this is what is asked in this question. Question 7. Write the relation R x comma x cube. X is a prime number less than 10 in roster form. तो 1 मार्कर के हिसाब से क्वेश्चन है, R is x comma x cube such that x is a prime number less than 10. तो ध्यान रखना प्राइम नंबर में गड़बड़ हो जाती है यहाँ। 1 प्राइम नहीं होता, 2 इज ए प्राइम नंबर। तो 2 कॉमा 2 क्यूब, 3 is a prime number, 3 comma 3 cube, 3 cube is 27, 4 is not a prime number, 5 is a prime number, उसका cube 125 है, 6 is not, 7 is the next prime, 7 का cube 343 होता है, 8 9 10 these are not prime। 10 तो ले भी नहीं सकते थे, 7 के बाद 8 और 9 आता है, प्राइम नंबर नहीं है। रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। In this question, A is given x, y, z, B is a set 1 2। तो आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछें, डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना भी हो तो आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, 3 एलिमेंट्स इन A, 2 एलिमेंट्स इन B is 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, तो जितने सबसेट्स होंगे उतने रिलेशन होंगे। तो 6 एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B में, तो A क्रॉस B के 2 की पावर 6 सबसेट्स होंगे और हर सबसेट एक रिलेशन होता है। तो जितने रिलेशन होते हैं, जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन फ्रॉम A to B विल बी 2 की पावर 6 64 होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, let R be the relation on Z. Set Z is for integer defined by AB such that A comma B belongs to Z. A minus B is integer. Find domain and range of R. Domain होगी set of first entry, range होगी set of second entries. So let us try to draw the ray diagram, which is very difficult to do in the infinite sets. Still we'll try to explain the concept. ये करने का मेथड नहीं है, सिर्फ explain करना है concepts को।
तो ये इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Domain is set of first entries of the ordered pair in set R के जितने भी ordered pair होंगे, जो फर्स्ट एंट्री का सेट होगा डोमेन. अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है. 0 दो एलिमेंट कब रिलेटेड है, जब उनका डिफरेंस इंटीजर है और ए और बी खुद इंटीजर है. तो 0 का डिफरेंस तो सबके साथ इंटीजर आएगा. 0 को किसी के साथ भी माइनस करोगे सेट बी के एलिमेंट में इंटीजर्स है, तो 0 यहां भी रिलेटेड होगा, यहां भी रिलेटेड होगा. 0 विल बी रिलेटेड विद ऑल एलिमेंट्स. 0 is related to all these elements like that. तो फर्स्ट एंट्री में 0 तो जरूर आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. 1 का डिफरेंस भी इन सबके साथ इंटीजर होगा. 1 is related to -3, 1 is related to 2. तो ये रे डायग्राम तो बड़ा एक पजल जैसा बन जाएगा. 1 - 1 भी इंटीजर होगा, 1 - 0 भी इंटीजर होगा. तो हाउ टू राइट दिस? फॉर any A and B belongs to Z. क्योंकि इसे रे डायग्राम से करना सिर्फ समझाने के लिए. अब जैसे -1 है, ये भी सबसे रिलेटेड होगा क्योंकि इसका भी डिफरेंस हर इंटीजर के साथ इंटीजर होगा. -2 का भी होगा, -3 का भी, 3 का भी, 2 का भी, लाइक दैट. तो A में कुछ भी नहीं बचेगा, सिमिलरली B में कुछ नहीं बचेगा. तो इसको लिखने का जो एग्जाम में तरीका वो ये है. फॉर एनी A and B belongs to Z, A minus B is always integer. अगर यहाँ पे होता A B such that A plus B is 4, तो सारे इंटीजर्स का सम 4 नहीं होता. तब मेरे पास A और B में रेस्ट्रिक्टेड एलिमेंट A के कुछ एलिमेंट A के B के कुछ एलिमेंट से रिलेटेड होते. अगर A plus B 4 होता या और कोई कंडीशन होती. लेकिन डिफरेंस इंटीजर है तो A के सारे एलिमेंट का डिफरेंस B के किसी भी एलिमेंट से लेंगे तो इंटीजर आएगा. तो इसका मतलब डोमेन जो है सेट A यहाँ पे था इंटीजर का सेट, सेट B मींस हेयर सेट Z. तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्योंकि यहाँ सारे इंटीजर्स रिलेटेड होंगे. और रेंज सेकेंड एंट्री भी ऑल इंटीजर्स आएगी.